What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 14th of Jan, and owing to exchange holiday tomorrow, Sensex weekly expiry was preponed by a day, and what a volatile expiry we had. Sensex opened around 250 points gap down, and the straddles didn't get much of an overnight crush. At the open, the straddles were trading at 380, but the entire day, the markets were constantly filled with delta and gamma moves, and today, even the premiums were quite jumpy, and even the depth of the order book was not that great. The limit order book was quite thin, and it was evident in how the option premiums were moving. Fun fact, अगर आप 15 minutes का chart open करके देखेंगे, तो every 15 minutes, either the call option has doubled or the put option has doubled. After 130, first the puts almost 10x and then the calls also 10x. It was a brutal gamma move post 230, and even I kind of got stuck in a couple of those gamma moves, but again towards the end of the day I somehow fire fought and came out in mild green. So tomorrow is a market holiday. While all of us expiry traders were busy fighting the markets, commodities are giving one of the clean trends of our lifetimes. Silver was up 4% yesterday, and today also silver is up 5%, and the short covering from the institutions would only lead to further rally. And this time it's not just about the technicals, but even the fundamentals are supporting this silver rally. तो इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है. If you have not watched that video, I'd suggest you to go and check it out. Tomorrow is a market holiday. The markets are going to be open on, again, the next trading day would be on Friday. And let's get to the terminal and let's see if there are any opportunities to trade on Friday. All right. अगर निफ्टी की डेली चार्ट की बात करें तो यस मार्केट्स यहाँ पे थोड़ा बेस बना रहा है एंड इट इज अ डिसेंट रीजन टू फॉर्म द बेस. आप देख सकते हैं कि दिस इज द ब्रेकआउट रीजन एंड इवन व्हेन द न्यूज़ फ्लो वाज अराउंड मार्केट सॉ सम अमाउंट ऑफ डिमांड हियर. आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सडन बाइंग आई है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है एंड मार्केट्स कहीं ना कहीं उसी लेवल पे एक बेस बना रहा है. सो जितना ये बेस के अंदर ट्रेड करेगा उसके बाद मार्केट्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगा. स्पेशली वी हैव बजट एंड बजट को कैटलिस्ट जैसे यूज करके किस डायरेक्शन पे मार्केट्स जाने वाला है, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट. फ्रॉम अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट आज का जो दिन था इट इज काइंड ऑफ अ नॉन इवेंट अनइवेंटफुल काइंड ऑफ अ डे बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है एंड आज का लो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज आज का लो अगर टूट जाता है ऑन अ फ्राइडे मार्केट एक्शन तो देन मार्केट्स के पास अनदर 150 पॉइंट्स का एक रेंज है मूव करने के लिए. फ्राइडे के दिन मार्केट्स कहाँ पे ओपन होने वाला है एंड कहाँ पे क्लोज होने वाला है, दैट्स गोना बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज टुमारो अगेन वी हैव अ मार्केट हॉलीडे एंड कंटिन्यूसली ग्लोबल फ्रंट से कहीं ना कहीं कुछ न्यूज आ रहा है बिकॉज एक तरफ टैरिफ्स का न्यूज़ आ रहा है एंड दूसरी तरफ ट्रेड डील का न्यूज़ आ रहा है. सो द मार्केट्स आर इन सम सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन स्टेट. सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस बिकॉज यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन नज़र नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादातर ट्रैपिंग होने वाली है एंड इट इज़ बेटर टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ कंफ्यूजिंग मार्केट्स इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन अ पोजिशनल फ्रंट. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बात करें तो विल डिस्कस this on Sensex chart because Sensex का आज expiry था and today the straddle premiums were quite okay because last time 270 280 पे straddle open हो रहा था but today we had 100 rupees extra तो 380 rupees पे straddle open हो रहा था but at the same time the markets have been volatile over the last 3 or 4 days since we started getting this news flow. Throughout the day the straddle continuously went down, the straddle got crushed, the walls got crushed but the markets were filled with non-stop gamma moves. अगर आप सेंसेक्स की 5 मिनट के चार्ट पे अगर जाके आप देख सकते हैं तो यू कैन नोटिस दैट द डेस रेंज वॉज वेरी स्मॉल. अगर कल के कंपैरिजन में या परसों के कंपैरिजन में डेस रेंज काफी छोटा था बट विद इन दिस स्मॉल रेंज द मार्केट्स वर क्वाइट वोलेटाइल एंड द मार्केट्स शॉप्ड राइट लेफ्ट एंड सेंटर एंड मल्टीपल टाइम्स ट्रैपिंग हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्विंग के आसपास एक बार बुल्स को ट्रैप किया गया है एंड इस लो के आसपास भी यहाँ पे 2 बार बेयर्स को ट्रैप करके मार्केट्स ने ऊपर गया है. सो 330 रुपीज के आसपास ट्रैडल मिल रहा था राइट एट 920 930 के आसपास. विद इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स देयर वाज अ डिसेंट क्रश इन द स्ट्रैडल्स. यू कैन notice that the markets from 83 350 levels it went to 83 700, almost 350 point का up move, 350 point का down move, another 450 point का up move and from there another 500 and 600 points का down move and even towards the end यहाँ पे maximum liquidity sweep करके the markets yet again moved 300 points. तो देखने में ये काफी कम लग सकता है because 300 points but the effect on the option premiums were quite brutal because every 15 minutes either the calls were doubling or the puts were doubling and in this fall the puts almost went 10x and in this up move the calls almost went 10x. तो दोनों तरफ
ऑलमोस्ट मार्केट सब लोगों को ट्रैप कर दिया था आज. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे देयर वाज सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट पोस्ट 3 o'clock बिकॉज 83,400 का जो स्ट्रैडल था इट काइंड ऑफ लीनियरली डीकेड. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट फ्राइडेज प्राइस एक्शन, तो लेट्स से निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यू कैन नोटिस दैट द ओपन इंटरेस्ट इज नॉट दैट ग्रेट. 26,000 पे मैक्सिमम जो कॉल शॉट्स हो गए हैं एंड यू कैन नोटिस 25,700 के आसपास थोड़ा बहुत puts, I mean straddles build हो चुके हैं and you can notice all the OTM puts have also been written. This doesn't give a clear cut information because a lot of people are in a wait and watch mode. थोड़ा बहुत markets को time दे रहे हैं and markets को ये सारा जो news आ रहा है उसको assimilate करने के लिए people are giving some time and a lot of people are not too comfortable taking the positional risk. अगर straddle की बात करें तो निफ्टी का straddle 250 पे क्लोज हुआ है एंड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1 o'clock से लेके कोई डीके नहीं आया है. इनफैक्ट एक्चुअली straddle एंड द वॉल्स हैव स्पाइक्ड एंड इसका जो रीजन क्या हो सकता है, देयर हैज बीन अ न्यूज फ्लो अराउंड एंड कल मार्केट्स का हॉलीडे है. सो कंसिडरिंग दैट एनीथिंग कैन हैपन ओवर द हॉलीडे, तो पीपल डोंट want to short these premiums at low value. So the straddle kept increasing in the last 3 hours. Almost 230 से लेके 250 तक almost 20 rupees 10% almost straddle spike हुआ है. But even when the straddle is trading at 250 points, I would not say this is a good bet for the option writers to short this because markets ने 200 points up and 200 points down बहुत आसानी से मूव कर रहा है. तो even if you short these premiums after अकाउंटिंग फॉर ऑल द डेल्टा एडजस्टमेंट कॉस्ट, आपके हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है. सो यू हैव टू ट्रेड प्राइस एक्शन स्पेशली ऑन द नॉन एक्सपायरीज. तो अगर फ्राइडे के प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स की बात करें तो अगेन आई विल नॉट टेक एनी चांस विद इन दिस रेंज. तो इधर आई विल बी taking a mean reversion trades around this level or I'll be taking a mean reversion trade around this level given that the markets open flat. Markets अगर आज के रेंज के अंदर खुलता है तो आज का रेंज का हाई और लो को मैं मीन रिवर्शन पॉइंट्स में कंसिडर नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार यहाँ पे ट्रेड मार्केट कर चुका है. सो लेट्स से मार्केट ओपन्स फ्लैट, तो देन आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट्स एट दिस लेवल. आई विल नॉट ट्राई टू गो लॉन्ग एट दिस लेवल बट रादर आई विल गिव सम ब्रीदिंग स्पेस टू द मार्केट्स, लेट द मार्केट्स मूव बिकॉज आज मार्केट्स ने थोड़ा एक इनसाइड टाइप ऑफ इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है. अगर आप पोजिशनल फ्रंट पे देखोगे तो दिस वाज अ वाइड रेंज डे एंड इन दोनों के कंपैरिजन में आज मार्केट कहीं ना कहीं काफी छोटा रेंज में फंसा रहा. यस, सिंस वी आर ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी डे एंड गामा मूव्स के साथ हम डील करते हैं तो इवन दीज मूव्स वर क्वाइट ब्रूटल फॉर द एक्सपायरी ट्रेडर्स. बट फ्रॉम अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट टुडे वाज सम सॉर्ट ऑफ अ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, एक इनसाइड कैंडल बनाया है. फ्राइडे वी शुड आइडियली ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज इन ईदर डायरेक्शन. अगर कंटिन्यूस इसके अंदर रहा वेल एंड गुड. आज का भी अगर देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अ 200 पॉइंट रेंज एंड हमको स्ट्रैडल मिल रहा है 250 पॉइंट्स. जब तक हमको एक एग्जैक्ट रेंज नहीं मिलता ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग प्योर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स इज स्टुपिडिटी इन माय ओपिनियन. तो अगर मार्केट इसके नीचे अगर ओपन करता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू कम हियर एंड यहाँ पे मैं पैटर्न के लिए वेट करूंगा. इधर मुझे एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए या एक ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल चाहिए और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू काइंड ऑफ अ पैटर्न चाहिए. जब ये पैटर्न फॉर्म होगा देन आई कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स एंड अ लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी. बट शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए लेट्स से इवन इफ मार्केट गैप्स डाउन देन मेरा शॉर्ट ट्रेड बनेगा इस लेवल पे 25,750 लेवल्स पे मेरा शॉर्ट ट्रेड बनने वाला है. एंड यहाँ पे मैं ट्राई नहीं करूंगा मार्केट्स को शॉर्ट करने के लिए, ना कि मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा शॉर्ट करने के लिए. यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करके मार्केट्स नीचे आएगा वेल एंड गुड, बट मेरे लिए आई विल ओनली बी टेकिंग द ट्रेड्स विच हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मी विनिंग बिकॉज मार्केट्स काफी वोलेटाइल हो रहा है एंड न्यूज बेस्ड फ्लोज के बेसिस पे मार्केट्स मूव कर रहा है. तो बेसिकली आई वांट सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर एक्सटेंशन फ्रॉम द मार्केट्स एंड देन आई विल स्टार्ट एंटरिंग माय पोजीशंस. तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देन आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू दिस लेवल 85,900 के आसपास आने के लिए वेट करूंगा. यहाँ पे भी आपको स्विंग्स दिख रहे होंगे बट ये स्विंग्स को मैं टेस्ट नहीं करने वाला हूं. इस स्विंग्स पे मैं एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड में नहीं लेने वाला हूं. अगर मार्केट यहां से वापस रिवर्स करेगा वेल एंड गुड, वो मेरे लिए नहीं है. तो आई विल बी वेटिंग फॉर दीज एक्सट्रीम्स. तो यहाँ पे इधर में मार्केट्स को यहाँ पे आने के लिए वेट करूंगा और यहाँ पे आने के लिए वेट करूंगा. ट्रेंडिंग ट्रेड्स में थोड़ा अवॉइड करने वाला हूं बिकॉज आप देख सकते हैं कि लास्ट एक वीक में ऑलमोस्ट 3 दिन लगातार मार्केट ने ट्रेंड ट्रेडर्स को ट्रेंड फॉलोअर्स को पैसे दे चुका है. तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट अनदर ट्रेंडी काइंड ऑफ अ डे. तो मोस्टली मार्केट दोनों तरफ चॉप करने वाला है बिकॉज मार्केट मूव्स इन फेजेस. मार्केट पहले वोलेटाइल रहने वाला है एंड देन साइडवेज जाने वाला है एंड देन वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है एंड देन उसके बाद अगेन फिर से एक रेंज एक्सपेंशन होने वाला है. सिमिलरली मार्केट पहले एक ट्रेंड दिखाएगा, देन थोड़ा पुल बैक दिखाएगा एंड देन बीच में साइडवेज जाएगा एंड चॉप करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन अनदर फ्रेश डायरेक्शन. तो मेरे हिसाब से कल
ट्रेंड्स के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए हमको. तो अगर ट्राई करना है तो मीन रिवर्शन ट्रेड्स के लिए ट्राई करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे एंड अगर आप स्कैल्पर काइंड ऑफ अ थिंग है तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ दीज swings where you can use these swings to actually start scalping. But again, we are not here to scalp the markets. And अगर हमको थोड़ा mid frequency में आके ट्रेड करना पड़ेगा तो then it is better to look for only mean reversion trades and not try to capture any trends tomorrow. Alright, these are my scenarios. I wish you guys a very happy Makar Sankranti. I'll see you again on Friday. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.